Yeah, ma'am. Welcome to Podventure podcast. 16 plus years of experience in talent acquisition. Jobs ही नहीं है. Actually, market में बहुत jobs है. They are basically talents. They are not resources. It's a very interesting story behind it. Nothing is better than HR. It makes a huge impact. वो कुछ चीजें होती हैं उनको शब्दों में हम नहीं कह सकते. We are sitting here because of that. How to hire more talented people than us? What are the key skills जो किसी candidate को stand out करते हैं? If you want to achieve certain goal, you have to. आपकी मॉम बहुत कुछ करती है. It will give a negative image for you. Is this person right for the organization or not? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस HR के सामने आते हैं. अभी जो ये पॉडकास्ट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो एज HR पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी उनके लिए क्या एडवाइसेस है? Don't wait for the campus placement only. बहुत से ऐसे बच्चे जिनके पास कोडिंग के स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देयर स्किल्स. वैसे क्या मिसकंसेप्शन है या मिस्टेक्स है जो कॉमन है स्टूडेंट्स में इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान? Don't worry on that front. व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ गुड रेज्यूमे? वो चीजें गेम चेंजर है. यदि आप कंपेयर करते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. व्हाट आर स्किल्स दैट एस्पायरिंग HR शुड हैव? You will never be successful in लेकिन एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कैंडिडेट में? ये बहुत रिस्की थॉट है. दुनिया एंड नहीं हो रही है. Neha ma'am, welcome to Podventure podcast. Thank How you. are you? I'm good. Thanks Yeah. for inviting me here. Yeah, thank you so much for coming. Let's start with basic introduction. Please introduce yourself to our audience. So, myself Neha Vyas. I'm working with Pattern Technologies right now. 16 plus years of experience in talent acquisition. And for me, when we talk about human, they are basically talents. They are not resources. And that is what my thought is, and I'm working towards it. Ma'am, you are in HR field since long time. तो HR ही आपने क्यों सिलेक्ट किया as a career option? So, it's a very interesting story behind it. Okay. So I'm basically a bachelor's in computer application. अच्छा. I tried coding, Okay. not get successful. Okay. I did diploma in multimedia. Okay. Tried it. Uh, I was good in that, but not that good. not that good. And then I realized what I enjoy most, and Okay. that's talking with people. So I Right. went to the HR. Nothing is better than HR when you want to talk with people. Yes. And what is the most rewarding thing in this career? The satisfaction you get once you select someone. If we talk about the most rewarding thing I remember in my career is one time when I selected someone and that person was so happy. They Right. called their family and they introduced me कि मम्मी मैं select हो गया and इन्होंने मुझे select किया है. That Right. video call Right. that makes a huge impact. And उसके बाद जो खुद को खुशी होती है कि that we are able to do something for someone. Right. That is the most rewarding thing, I think. Right. Great. Ma'am, recently you went for recruitment of army officers. Yes. Yeah. So how was that experience? वो कुछ चीजें होती हैं उनको शब्दों में हम नहीं कह सकते. Right. So it's a proud moment to meet with army officers. Right. And basically they know much better how to interact with human than us. In Right. many ways they are having more experience which we don't have right now. Right. And they have already done so much. We are sitting here because of them. Right. So best experience. We are looking forward to working with them. Let's see where it goes. Fingers crossed. Fantastic. Now we talked about army officers. तो बहुत से ऐसे लोग हैं मैम जो कि बहुत हाईली टैलेंटेड है, एक्सपीरियंस्ड है. तो वो स्टार्टअप्स या वो फर्म्स जो उनको हायर कर रही है उन्हें ऐसे क्या एडवांटेजेस है उन कंपनीज में काम करके, क्योंकि व्हाई दे एग्री टू वर्क विथ द स्पेसिफिक स्टार्टअप और स्पेसिफिक कंपनी? उनके पास बहुत चॉइसेस है. सो स्टार्टअप में आपको एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये मिलती है कि आपको बहुत सारी हैट्स वेयर करने का मौका मिलता है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हैट्स, स्टार्टअप्स में आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रोल करने मिलते हैं. लाइक
इन माय करियर आई वर्क विथ मल्टीपल स्टार्टअप्स, तो मुझे कभी एडमिन का रोल करना पड़ा, कभी Right. एचआर का रोल करना पड़ा, कभी टीए का रोल करना पड़ा, कभी ब्रांडिंग का रोल करना पड़ा. Right. ओके, एंड इवन गोइंग फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू, डिजाइनिंग द टेक्निकल इंटरव्यू, Right. इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. Hmm. सो इट डिपेंड्स आपको क्या चाहिए आपके कैरियर में इस फेज में. Right. सो स्टार्टअप्स इज वेरी गुड फॉर लर्निंग एंड wearing the multiple hats. Right. How to hire more talented people than us? So we always say hire A plus people. When we are saying A plus people is the people who are more aligned with your requirement, who knows कि क्या करना है क्या नहीं करना है. Right. Okay. यदि आप टैलेंटेड लोगों को हायर करोगे तो आपको उनको बताने की जरूरत नहीं होगी कि आपके लिए क्या आपको क्या करना है. You just hire them, and hiring से basically they kind of become a part of your organization. Right. तो आप जब उनके साथ काम करते हैं, आपको ना तो उनको गाइड करने की जरूरत है ना कुछ, आप उनको बताइए आउटपुट क्या है. They will align with the goal and they work on it. So when you are taking this kind of decision, make sure you are giving time to them. आपको अपनी एक्सपेक्टेशन उनको फ्रैंकली बताने की जरूरत है और उनकी एक्सपेक्टेशंस जानने की जरूरत है. सो जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है. मेक श्योर यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम व्हेन यू वांट टू हायर ए प्लेयर. आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते. आपको ए प्लेयर जल्दी में हो सकता है तुक्के से मिल जाए, बट यूजुअली व्हेन वी हरी अप फॉर थिंग्स वी एंड अप डूइंग द रॉन्ग डिसीजन. सो बी क्लियर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर फर्स्ट. मैम, नाउ वी विल टॉक अबाउट जॉब मार्केट. अभी सारे लोग मतलब गॉसिप कर रहे हैं कि जॉब्स ही नहीं है. मतलब ये ट्रेंड है कि जॉब्स है ही नहीं मार्केट में. तो इस पर आपके क्या थॉट्स है? एक्चुअली मार्केट में बहुत जॉब्स है. ओके. ओके, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है. हम लोग जब हायरिंग के लिए जाते हैं, सो मोस्टली आई एम नॉट सेइंग कोई रिजेक्ट हो रहा है या कोई सिलेक्ट हो रहा है. आई एम मोर टॉकिंग अबाउट कि जब हम लोग हायरिंग के लिए जाते हैं, हमें वो स्किल गैप दिखता है कि लोगों को स्पेसिफिक यदि मैं कुछ स्किल देख रही हूँ, वो स्किल की नॉलेज नहीं है या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज लैकिंग है. Okay. So like in campuses, when we go, we get candidates who are really good. Means we don't say कि हम किसको reject करने आए. We basically look for the alignment. Right. So if they have some practical knowledge or if they can showcase कि okay, I'm ability to learn, that's the main skill set we are looking for. Okay. And what are the key skills जो किसी candidate को stand out करते हैं? So there are multiple skills when we go to technologies. But soft skill is बहुत ignored हो जाता है. People are ready to work on technology. They are ready to learn new skills on technical side. But soft skill, human interaction is something which is kind of getting missing in this area. And I can share a few examples. Like sometimes we get so excited, किसी ने पूरा technical round सब चीजें clear कर ली हैं. And then at the end, when we are talking to them, we realize कि they are not a team player. So one of it example is that one candidate has cleared all the interview rounds, and when we are talking about their past experiences, they started bad mouthing about their companies, their family members. Right. And when you are working with the organization or even anywhere, if you want to achieve certain goal, you have to work as a team. यदि आप टीम के साथ काम नहीं कर सकते तो आप वो गोल अचीव नहीं कर पाओगे. एंड इट्स लाइक अ टीम स्पोर्ट्स, राइट. ये पूरी टीम को एक साथ काम करना पड़ेगा. एक पर्सन की गलती के कारण आपकी इंडिया टीम जीतेगी कि हारेगी वो डिपेंड कर जाता है. एक प्लेयर पे डिपेंड कर जाता है, राइट. और इसका कोई स्पेसिफिक कैंडिडेट का कुछ एग्जांपल है आपके पास? सो एक एग्जांपल है, एक कैंडिडेट को लेकर बहुत सब हो गया इंटरव्यूज, एंड लास्ट में जब उनसे पूछा गया कि ओके tell me about something about your family, and उन्होंने the word he used to introduce his mother, like हाँ मेरी mom homemaker हैं, वो कुछ नहीं करते हैं. like okay, आपकी mom बहुत कुछ करती है, right. So if you are not able to respect your family members in front of interviewers, it will give a negative image for you, and कई बार सच बाहर आ जाता है. सो बेसिकली दैट्स द रॉन्ग थिंग टू से, बट इस तरह से आप जब बात कर रहे हो अपने फैमिली मेंबर के बारे में, आप अपनी टीम के बारे में कैसे बात करोगे, राइट. आप टीम के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एचआर के सामने आते हैं, टीएस के सामने आते हैं कि इज दिस पर्सन राइट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. मतलब जो हमारे सॉफ्ट स्किल्स है उन्हें छोड़कर जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं वो बहुत है बच्चों में,
उनको कोडिंग वगैरह बहुत आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूज हम खो रहे हैं, वैल्यूज नहीं रहे बच्चों में. आई वोंट से खो रहे हैं, बट या वी आर नॉट फोकसिंग मोर ऑन दैम. कि अभी क्या होता है, हम लोग इतनी प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं इंटरव्यू की, हम लोग हर कोई बैठ के कोडिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, बट जब इंटरेक्शन की बात होती है, ह्यूमन इंटरेक्शन, बेसिकली अभी देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया. कॉम्पिटिशन से आप जीतोगे कैसे? आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको टेक्निकल स्किल्स आने चाहिए, बट आपको ये नहीं पता कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो आपको सबको साथ में लेके चलना है. आपको उस मार्केट को कैसे अपना गोल अचीव कर सकते हो, उसके लिए आपको लोगों की हेल्प की जरूरत होगी. यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ टीम मेंबर्स, यू नीड गाइड्स फॉर दैट. तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज पे ध्यान दें. राइट, मतलब वो जो कोट था कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, वो अभी ऐसा हो सकता है कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन. मतलब बच्चे हर पर्सपेक्टिव पे फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स ही देख रहे हैं. अभी एक I got a chance to work with one person. Okay. He joined as an intern. He did his first internship in AI. Okay. Then he did his second internship in product management. Okay. Trying to learn new skills. So मैंने क्वेश्चन पूछा कि AI पे ऑलरेडी की है internship. Why did you want to do your second internship in product management? The person's answer is कि मुझे अभी पता नहीं कि मेरा कैरियर गोल में क्या रखूं. I want to learn as much as I can, and then I will find my interest area. Right. Like for me, when I coding की, designing की, then I found my interest area. So be ready to learn. Try to work on a different domains. It will be much more easier. अभी जो ये पॉडकास्ट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो एज HR पॉइंट ऑफ व्यू से आपके उनके लिए क्या एडवाइसेस है? So basically आज का मार्केट इतना इजी हो गया, आपके पास हर चीज एक्सेसिबल है, आपके पास हर चीज मिल रही है आपको इजीली. आपको यूट्यूब में जाओगे, आपको गाइडेंस मिल जाएगा. आपको आप किसी और साइट्स पे जाओगे, आपको गाइड करने वाले बहुत लोग हैं. मगर एट द सेम टाइम डोंट गो बिहाइंड ओनली वन स्किल सेट. या और यदि आपको गोल डिफाइंड है कि मुझे ये चीज करनी है, लर्न अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम बी फ्लेक्सिबल. कि कुछ नई चीजें आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनको पढ़ते जाओ, उन चीजों को करते जाओ. Focus on your GitHub, HackerRank, TechGig. हर कंपनी हैकाथॉन्स कर रही है. Go participate in that. Right. Don't wait for the campus placement only. क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको मोर एक्सपोजर भी मिलेगा. साथ में कंपनीज का ये करने का फोकस यही रहता है कि वो उनको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मिल जाए. Right. So participate in that. It will be really helpful. मैम, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टिफिकेशंस. सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, लेकिन कुछ लोग इसे मानते नहीं. सो व्हाट इज द राइट थिंग? व्हेन आई एम एज अ टीए पर्सन, मैं सर्टिफिकेशंस देखती हूँ. इट्स अ गुड थिंग टू हैव. ओके, बट नॉट इम्पोर्टेंट. एक्चुअली गुड थिंग इसलिए कहते हैं कि मुझे पता चल रहा है कि आपका फोकस एरिया क्या है. If you are AWS certified, मुझे पता है कि आपका फोकस एरिया AWS है. You want to work on AWS. साइबर सिक्योरिटी है, आपका फोकस एरिया वो है. तो मेरे लिए इजी हो जाता है. ट्रेनेबिलिटी पता चल जाती है कि ओके, इंटरेस्ट एरिया ये है, पर्सन इजीली काम कर लेगा. बट इट्स कंपल्सरी ऐसा नहीं है. ओके, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेशंस रियल में बहुत कॉस्टली होते हैं एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो इफ यू आर, आप उसके बगैर किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर लो या फिर कुछ और सर्टिफिकेशन कर लो, लिंक्डइन लर्निंग वगैरह का कर लो. आप उनको प्रूव करो ड्यूरिंग द इंटरव्यू. राइट. दैट विल मेक अ मेजर इम्पैक्ट. और मैम, ये सीडैक कोर्सेस वगैरह, तो वो उनमें से कौन से कोर्सेस अच्छे हैं? सीडैक के सारे कोर्सेस अच्छे हैं. सो आई गो एवरी ईयर टू सीडैक टू हायर पीपल. एंड one thing which I really like about कि 6 months का जो उनका कोर्स पीरियड होता है, 6 months में वो आपसे इतना वर्क करवाते हैं. ओके, इट्स लाइक 6 months का एक्सपीरियंस लेके आप आ रहे हो. राइट. एंड वन ऑफ द हायर आई वांट टू डिस्कस हियर, उन्होंने 12 साल पहले इंजीनियरिंग की थी. ओके. एंड शी वांटेड टू वर्क इन IT सेक्टर, बट कुछ फैमिली कंडीशंस थी, शी कुडंट मूव आउट. बट उनको फोकस था कि मुझे IT सेक्टर में काम करना है, मुझे डेवलपमेंट में काम करना है. बट शी हैज टू बी इन होम टाउन टेकिंग केयर ऑफ फैमिली. सो शी टुक अ डिसीजन कि वो फैमिली को देखना है. आफ्टर 12 years शी न्यू कि मुझे आना ही है. शी वर्कड एज अ लेक्चरर, शी वर्कड ऑन मल्टीपल जॉब्स. आफ्टर 12 years शी वेंट टू CDAC. ओके, शी डिड CDAC कोर्स एंड क्रैक्ड द इंटरव्यू. ओके, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर. So, इस तरह के लोग आपको सीडेक में बहुत मिलते हैं. बेसिकली वो 6 months जो है,
वो आपको Okay. बहुत कुछ सिखाते हैं। और 12 इयर्स का गैप था उनका, गैप भी करियर से रिलेटेड नहीं थे वो। हाँ मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं था। राइट। सो लेक्चरशिप या फिर बिकॉज शी वाज इन स्मॉल टाउन, ओके। तो उनको जो जॉब मिली शी वाज एक्टिव। बट या व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सब लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, बट इट्स एक्सपीरियंस से ज्यादा आपकी विलिंगनेस बहुत जरूरी है, विलिंगनेस टू लर्न। राइट। एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट कोडर आई हैव सीन। मैम, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोडिंग के स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देयर स्किल्स इन द इंटरव्यू, तो उसके लिए वो क्या कर? सो इंटरव्यू में पहली चीज लिसनिंग स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सामने वाला क्या कह रहा है वो आप ध्यान से सुनो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या प्रेजेंट करना है। सेकंड थिंग, यदि आप बहुत शाई हैं, आपको इंटरव्यू में बात करने में डर लगता है, सो यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल्स लाइक लिंक्डइन है, फिर गिटहब है, हैकर रैंक है, स्टैक ओवरफ्लो है, ठीक है, हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करिए। उनका जब आप अपने रिज्यूम में लिखते हो ना अचीवमेंट एरिया कि ये चीजें मैंने की है, ये सामने वाला आपसे पूछेगा कि ओके व्हाई शुड आई हायर यू, या फिर आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आप इजिली उनके बारे में बात कर पाओगे, क्योंकि तब आपको ये चीजें पता है, आपको पता है कि ये चीजें कैसे होती हैं, ये चीजें क्या करते हो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको शोकेस करने में इजी हो जाएगा। राइट। इफ यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर कॉन्फिडेंट। या एंड नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल आप बोल पा रहे हो। मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग अपना मोबाइल खोल के बोलते हैं मैं अपना मोबाइल खोल के दिखा सकता हूँ, मैं आपको अपनी गिटहब प्रोफाइल दिखा सकता हूँ, कैन आई शो यू दैट, इट्स ओके। कि आप बोल नहीं पा रहे हो, आप थोड़े नर्वस हो रहे हो, आप वो शो करोगे सामने वाले को, दैट इज ऑल्सो ओके। ओके। सो नोबडी इज गोइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल नोबडी इज गोइंग टू जज यू। ओके, हर कोई अपनी कंपनी के लिए अलाइनमेंट ढूंढ रहा है, राइट, कि राइट अलाइन पीपल उनको अपनी कंपनी के लिए मिल जाए। सो ये डर जो रहता है ना कि रिजेक्ट हो जाऊंगा, वो डर मत रखो। यू आर इन टैलेंट एक्विजिशन सिंस लॉन्ग पीरियड नाउ, तो ऐसे क्या मिसकंसेप्शन है या मिस्टेक्स है जो कॉमन है स्टूडेंट्स में इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान? सो मिसकंसेप्शन को लेकर मैं एक चीज बोलूंगी, सब लोगों का ये रहता है कि टीएस कभी कॉल नहीं करते। इवन मैं अपने बैग में एक टैग लगा के घूमती हूँ, आई विल गेट बैक टू यू। सब लोगों का ये रहता है कि टीए वाले यही बोलेंगे, रिक्रूटर्स यही बोलेंगे, एक्चुअली फैक्ट ऐसा नहीं है। होता ये है कि जब आप बात करते हो इंडिया में, आपके पास लार्ज वॉल्यूम में रिज्यूम्स आते हैं, ठीक है, और हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे भी दिन में 10 या 15 लोगों से बात हो पाएगी, हर किसी से बात नहीं कर पाएंगे, एंड इट हैपेंस समटाइम वी मिस ऑन, so that part I accept. But when we talk about the preparation and misconception from the candidate side, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप छोटी छोटी चीजें आप प्रिपेयर करोगे तो आपको इजिली आप आ सकते हो सेक्टर में। so don't worry on that part. कोई आपको रिजेक्ट करने नहीं है, that's the word I can say. Right. मतलब जो टेंशन नहीं लेना है वो बच्चे पहले ही ले लेते। हाँ, और टेंशन के साथ में क्या होता है कि एक डर जो रहता है कि जैसे आज के पॉडकास्ट से पहले मैं डरी हुई थी, खैर बोलना क्या है, मगर जब आप सामने जाते हो, आप उन चीजों को फेस करते हो, तो आपको धीरे धीरे खुद ही कॉन्फिडेंस आता है। एक इंटरव्यू में नहीं हुआ, इट्स ओके, दूसरे में नहीं हुआ, इट्स ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वो 12 साल का जो गैप था, जो मैंने पहले एग्जांपल लिया, हाउ मे बी स्ट्रेसफुल फॉर दैट पर्सन, but the goal clear tha, she worked towards it and she got there, right? So don't worry on that front. What is your definition of good resume? Good resume, आप किसी चीज को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर सकते, हर किसी की रिज्यूम अलग होती है। ओके, बट आप जब रिज्यूम बना रहे हो, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, आपको पता है कि इस कंपनी इस चीज को देख रही है, इस तरह का स्किल देख रही है, तो अपनी रिज्यूम उसके हिसाब से बनाओ। ATS फ्रेंडली डेफिनेटली, मगर ATS में एक और प्रॉब्लम होती है, ATS ज्यादातर कीवर्ड्स ड्रिवन होते हैं, आपके उसमें वो पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं है, आपकी रिज्यूम सिलेक्ट नहीं होगी। ओके, सो यदि आपको पता है कि मुझे डेटा साइंस में ही जॉब देखनी है, डेटा साइंस रिलेटेड जो आपने काम किया है वो चीजों को प्रॉपर्ली मेंशन करो, ठीक है, एंड फोकस ऑन वन स्किल सेट कि हाँ मुझे इस स्किल सेट में तो मैं ये चीजें कर सकता हूँ, उससे रिलेटेड आप वर्क करो, आपकी रिज्यूम ऑलरेडी परफेक्ट हो जाएगी। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी रिज्यूम 100% हर एक चीज के लिए हो जाए। तो जब आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई करें या जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करें,
go through that company, go through that job requirement. आपको लिंक्डइन पे जाके उनके लोगों की प्रोफाइल मिल जाएगी जो उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उस तरह की प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं. आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा कि ओके ये लोग किन किन टेक्नोलॉजी पे काम करें, क्योंकि जेडी में भी हर चीज मेंशन नहीं होती. जेडी में भी कंपनी वो जेनरिक बनाती है स्टार्टिंग में कि ओके ये चीजें हैं, आपको ये चीजें आती हैं, देन विल कंसीडर यू. बट आप जब किसी की प्रोफाइल पे जाते हो तो आपको ज्यादा पता चलता है कि ओके इसमें से ये स्पेसिफिक ये वाले पे क्या काम कर रहे हैं. सो इट विल बी रियली हेल्पफुल. और रिज्यूमे में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज स्किल सेट्स जो आई मेंशनिंग एंड अचीवमेंट्स. हम लोग बहुत सारे चीजें ऐसी होती है जिनको हम सोचते हैं कि छोटा अचीवमेंट है तो क्यों मेंशन करें. मेंशन इट. ओके स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, मेंशन इट. स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स बहुत सारे लोग मेंशन नहीं करते, बट इट शोज योर टीम बिल्डिंग स्किल्स, हाउ यू परफॉर्म विद द टीम, हाउ यू परफॉर्म अंडर प्रेशर. जो बैडमिंटन खेलता है इट्स ओके, इट्स नॉट अ टीम स्पोर्ट, बट एट द सेम टाइम हाउ यू परफॉर्म अंडर प्रेशर. आपने अंडर प्रेशर इतना गेम खेले हैं, आपने ये किया है, तो आइडेंटिफाई योर स्किल. ये एक मिसकंसेप्शन है मैम स्टूडेंट्स में बहुत कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेंशन नहीं करते रिज्यूमे में. मतलब रोल है उसका जो एक्सपीरियंस है वही डालते हैं या उसके रिलेटेड अचीवमेंट्स ही डालते हैं. दैट इज अ मिसकंसेप्शन. आई एग्री टू दैट. क्योंकि आपने यदि कुछ किया है, कोई भी चीज आपको लगता है आपकी अचीवमेंट है, मेंशन दैट. क्योंकि अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. कुछ टाइम पहले एक का इंटरव्यू लिया था. दैट पर्सन वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन. उसने कहीं पे भी रिज्यूमे मेंशन नहीं किया था. अच्छा. बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू होता नहीं कि लगता है कि हाँ इस पर्सन में पर्सनालिटी है, ये पर्सन ये काम कर सकता है. when we asked more, that person is already having experience in क्रिकेट टीम को बिल्ड करना. उसने उसके कॉलेज की क्रिकेट टीम बिल्ड की थी फ्रॉम स्क्रैच. उसने लोगों को क्रिकेट सिखाया था, ट्रेनिंग दी थी. एंड व्हेन वी स्पोक विद हिम, लिटरली हम लोग को वो 15-20 मिनट का जो सोचते हैं कि डिस्कशन होगा वो 1 घंटे तक गया. एंड वी आर इम्प्रेस्ड विद दिस कैंडिडेट. रीजन उसने वो चीजें की हैं जो हम लोग देख रहे हैं. इनफैक्ट उससे ज्यादा चीजें की है, नॉट रिलेटेड विद द वर्क आई एम लुकिंग फॉर, बट इट शोज द कैपेबिलिटी कि आगे चल के इस पर्सन को यदि मैंने मेंटरिंग का काम दिया. इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे अजी केवल 6 महीने के लिए जॉब चाहिए, दिस इज नॉट द राइट वे. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म, यू आर शोइंग कि मैं लॉन्ग टर्म प्लेयर हूं. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और उस स्किल्स को छोड़ के आप और भी क्या चीजें करते हो वो मैटर करती है. यस. अब कॉलेजेस, बहुत से कॉलेजेस होते हैं. कुछ कॉलेजेस की प्लेसमेंट रेट बहुत कम है, कुछ कॉलेजेस की प्लेसमेंट रेट बहुत हायर है. तो जिन कॉलेजेस में प्लेसमेंट रेट कम है उन कॉलेजेस के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि उनके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? कई बार ऐसा होता है कि कॉलेजेस रिमोट में होते हैं, इसके कारण उनका प्लेसमेंट रेट कम होता है. ओके ये मैं रिसेंटली एक के साथ डिस्कशन हो रहा था एंड लाइक हमारे कॉलेज के पास में एयरपोर्ट नहीं, कंपनी पूछती है कि एयरपोर्ट कितने दूर है आपके यहाँ पे. दे डोंट वांट टू कम देयर. सो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं. बट एट द सेम टाइम यदि आपके स्टूडेंट्स हैकाथॉन्स में पार्ट लेते हैं, आप कंपनीज को गेस्ट लेक्चर के लिए इनवाइट करते हैं, ओके आप इंटर्नशिप ऑफर करते हैं. आजकल कंपनीज आर इन्वेस्टिंग मोर ऑन इंटर्नशिप, बिकॉज इंटर्नशिप के टाइम पे स्टूडेंट्स से जब वो इंटरेक्ट करते हैं, जब उनको ट्रेन करते हैं कि दे गेट टू नो कि ओके इस पर्सन का स्किल कैसा है, राइट, ओके ये पर्सन में कितना पोटेंशियल है. सो वो चीजें गेम चेंजर है. एंड गेस्ट लेक्चर्स एंड bringing out all the professionals from outside, it gives students also experience basically क्योंकि कंपनी में कैसा काम होता है. okay, तो वो बहुत impactful है. if they can start that nothing like this. right. Now let's take one example. स्टूडेंट ए है और बी है, लेकिन ए स्टूडेंट ने इंटर्नशिप करी है, राइट, बोथ हैव स्किल सेट्स, बट क्या रिक्रूटमेंट के टाइम उनमें वैल्यूज कम ज़्यादा होते फ्रॉम, मतलब जो ट्रेनिंग ऑन प्लेसमेंट से ले वो उनको कम या ज़्यादा वैल्यू देते बेस्ड ऑन उनको एक्सपीरियंस है कि नहीं इंटर्नशिप का? So I can't say training and placement cell, but I can say from a TA standpoint, जब आपने इंटर्नशिप की होती है तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ओके आपने किस तरह की इंटर्नशिप की है, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपकी लर्निंग क्या है. सो वो एक हमारे लिए इजी हो जाता है बेसिकली. आई एम नॉट सेइंग बी इज नॉट गुड, ए इज मच बेटर, बट इट्स मोर लाइक अलाइनमेंट जानने में कि आपने इंटर्नशिप के टाइम पे आपने लोगों से इंटरेक्ट किया है, यू नो अबाउट द कॉर्पोरेट कल्चर, ओके आपका एटीट्यूड एक चेंज हो चुका होता है इंटर्नशिप के बाद. तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है टीएस के लिए. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एआई. एआई का क्या इम्पैक्ट होगा जॉब्स पर? सो एआई का इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा जॉब्स पर, पर
यदि हम लोग ये सोचें तो जब कैलकुलेटर आया था तभी भी लोगों के जॉब पे इम्पैक्ट हुआ था, राइट। सो इम्पैक्ट तो हर न्यू टेक्नोलॉजी के बाद लोगों पे होता है। ये कोई नई चीज नहीं है। राइट। कंप्यूटर आया था तभी भी इम्पैक्ट हुआ था, एआई है तो भी। अभी हमको बस अपनी स्किल चेंज करने की जरूरत है। ओके, अभी हमें न्यू चीजें लर्न करने की जरूरत है। कंटिन्यूअस लर्निंग इज द की। कंटिन्यूअस लर्निंग, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, राइट। so continuous learning is the only key we are looking for. इवॉल्व होना। Yes. You have mentioned that you see employees as a valuable human, not only resource. तो आप ये प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हो आपके टैलेंट एक्विजिशन के दौरान? So when we talk about employee, go with the example. Okay. आप आपने 2 लोगों को हायर किया, Right. okay, आपने 2 लैपटॉप लिए। लैपटॉप से आप सेम आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? वो 2 ह्यूमन बीइंग से आप सेम आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। Right. हर एक का एक अलग स्किल सेट होता है, हर एक की एक अलग स्ट्रेंथ होती है। सो जब आप किसी को हायर कर रहे हो या फिर आप आपकी टीम है, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर गोल्स आर, उनको किस चीज में इंटरेस्ट है। Okay. इनफैक्ट जब आप कुछ नया डिसीजन ले रहे हो या फिर कुछ चेंज कर रहे हो, इन्वॉल्व देम, गिव देम अ डिटेल कि यदि आपने डिसीजन लिया है या फिर आपको कुछ चीजें चेंज करनी है, आप उनको जब इन्वॉल्व करोगे अपने डिसीजन मेकिंग में, वो खुद खुश होंगे एंड दे विल गिव यू मच बेटर आइडिया। राइट। सो if you involve them and if you speak with them, nothing like that. Empathy is the key over here. मैम, हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं कंपनी ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो, और ऊपर से फैमिली में मामा चाचा कह रहे कि इसकी प्लेसमेंट हो गई, तेरा क्या हुआ, दोस्त भी कह रहे कि मेरी इंटर्नशिप लग गई, तो उस वक्त बच्चा बहुत डिप्रेस हो जाता है, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? सो पहली चीज, कंपनी ने आपको सिलेक्ट नहीं किया ऐसा नहीं है। okay. कंपनी अपना अलाइनमेंट देखने आई थी, उनको जो लगा कि ये पर्सन अलाइंड है, उन्होंने उस पर्सन को लिया। सो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ओके, सेकंड थिंग, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कंपनीज के साइड से, कंपनी स्पेसिफिक स्किल सेट देख रही हो। राइट। ओके, हर किसी को हर स्किल सेट आए ये पॉसिबल नहीं है, हम सब ब्रह्मा नहीं है। राइट। राइट। सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। हो सकता है आपका इंटरेस्ट एरिया कुछ डिफरेंट हो, आपके स्किल सेट्स डिफरेंट हो, तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। एंड सेकंड थिंग, आजकल ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जॉब के लिए ही बैठे हो। आज की इकोनॉमी की बात करें तो बहुत सारे फ्रीलांसिंग जॉब्स अवेलेबल हैं। राइट। इनफैक्ट कई जगह पे तो हैकाथॉन में इतना प्राइज मनी होता है कि आपको 2-3 महीने जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। सो आप उन चीजों पे फोकस कर सकते हैं। देयर आर मेनी ऑप्शंस। एंड यदि किसी को मींस ये कह रहा है कि तुम्हारी जॉब नहीं लगी, इसकी जॉब लगी, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। यदि आप कंपेयर करते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सामने वाले का स्किल सेट डिफरेंट था, आपका स्किल सेट डिफरेंट है। आप खुद को एज अ रिसोर्स यदि खुद ट्रीट करने लगे कि नहीं मेरे से आउटपुट इतना निकलना चाहिए, राइट, वो नहीं होगा। आप खुद को रिसोर्स की जगह खुद को टैलेंट सेंटर समझो। खुद को ये समझो कि मैं किस में अच्छा हूँ, मेरे लिए मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है। किसी चीज को छोटा मत समझो। यदि लग रहा है कि मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, डिजाइनिंग की जॉब के लिए अप्लाई करो। इट डजंट मैटर कि आपने बीएससी साइंस किया है या फिर कोई और किया है, आप ट्राई करो। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ट्रेनिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप वो करो, आप उसको ट्राई करके देखो। आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, उस पर ट्राई करो। ये चीजें ना बहुत इम्पैक्टफुल होती है। हम लोग सोचते हैं सब साइड हॉबीज है, बट अभी हम लोग यदि देखें आज के मार्केट में, दिस साइड हॉबीज आर पेइंग मच मोर देन आवर ट्रेडिशनल जॉब। सो दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड गिग इकोनॉमी। और मैम, और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स आज का जो एरा है ना, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ। पहले कैसे होता था कि यस आई एम अ डॉक्टर और आई एम अ इंजीनियर, लेकिन अब स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि आई एम इंजीनियर एंड XYZ, आई एम अ डॉक्टर एंड XYZ। दो चीजें हम एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे करियर है। और बच्चे क्या करते हैं कि अगर ये कंपनी में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको ऐसा लगता है कि डू और डाई, अगर ये नहीं हुआ तो मुझसे कुछ नहीं होगा। ये बहुत रिस्की थॉट है, क्योंकि आप दुनिया एंड नहीं हो रही है। ओके, थिंक अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट, कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आपके गोल्स हैं, फोकस ऑन देम। वो कंपनी लास्ट कंपनी नहीं थी। ओके, इसके आगे भी बहुत सारी कंपनीज हैं, कॉलेज के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जॉब एक ट्रेडिशनल वे है मार्केट मींस आपके लिए, बट फ्रीलांसिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, दिस आर ऑल्सो अ गुड वे। खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं आजकल। ये चीज बहुत अच्छी है। बहुत सारे मींस ड्यूरिंग कोविड आई हैव सीन
बहुत सारे लोगों ने कोविड के टाइम पे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, अपना खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी, कुछ नहीं तो हमने एक साइट बनाई, वहां से वो लोगों के घर में जाके प्रोडक्ट सेल करने लगे. Right. These are done by engineering students and they are very profitable. So you have that potential, you just need to find a way. और उसके लिए आपको कोई यदि आपको भी mentorship की जरूरत है, you will get them. Speak with others. The best way is to speak with others. अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात करो, अपने कलीग से बात करो, अपने जैसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिवीजन में बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं टीएस से, उनसे पूछो कि ओके ठीक है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बट मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर मी. सजेशंस लो मगर करो अपने हिसाब से. Right. Nobody can know you better than yourself. सुनो सबकी करो मन की. करो मन की. Yes. और जो स्टूडेंट्स इस एचआर फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए इनिशियल जो एंट्री लेवल जॉब्स क्या होती है, इंटर्नशिप्स कैसी होती है? एचआर के लिए टीए में आपको इंटर्नशिप मिल सकती है इजीली. बहुत सारी कंसल्टेंसीज होती हैं. देन यू विल, यदि आप चाहेंगे कि मैं एकदम से एचआर में पूरे साथ में घुस जाऊं, सारी चीजें एक साथ कर लूं, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एचआर एक ऐसी फील्ड है जो कि उसमें बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है. राइट, स्टेप बाय स्टेप ही रहेगा. सो मे बी टीए, मे बी रिलेटेड विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कुछ छोटी छोटी टास्क आपको मिलेंगे. इंटर्नशिप स्टार्ट करो. ठीक, कोई भी कंपनी डायरेक्टली टीए में आपको पूरा डेटा नहीं देती. और उसका रीजन भी है, यदि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, यदि वो बाहर आई तो इट्स अबाउट द कैरियर ऑफ समबडी. So that's the main reason. And what are skills that aspiring HR should have? Empathy. Okay. And willingness to learn. Ready to meet with people, networking. Okay. Those are the main skills. यदि आप को लोगों से बात करने, आप so if you are not able to understand people, okay, you will never be successful in this field. And सबसे ज़्यादा लोगों में ये रहता है ना कि HRs करते क्या हैं, रंगोली बनाते हैं, बट फैक्ट वो नहीं है. HRs आपके लिए बहुत फाइट करते हैं, अब वो आपको पता नहीं रहता, वो सब चीजें बैकग्राउंड में होती हैं. तो आपको आप में वो विलिंगनेस टू फाइट, ओके, एंड at the same time masking your emotions is also important. When you are listening to someone and if somebody is sad and you become sad, it's not going to help you. Emotional intelligence. Yeah, that is really important. HRs को वो चीज बहुत करनी पड़ती है, and it's one of the most difficult job. क्योंकि आप कोई पेन में है या फिर कि किस क्या कंडीशन में है, आपको वो समझना है. Okay, you are like a psychiatrist for them. At certain points. So yeah. Empathy and human interaction are key. Yes. Ma'am, how has this HR field evolved since 20-30 years? So पहले जब हम HR की बात करते थे तो HR का काम होता था सैलरी देना. एक साल में एक बार परफॉर्मेंस रिव्यू करना, काम खत्म हो गया. Right. आज के टाइम में जब हम HR की बात करते हैं, so HR is also related with your इनफैक्ट अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे HRs ऐसे हैं जो आपके काइंड ऑफ फैमिली मेंबर जैसे होते हैं. ठीक है, एम्पैथी बहुत ज़्यादा है अभी. हर किसी को, जैसे आप देखोगे मेंटल हेल्थ, उस पर फोकस बहुत है HRs का. सो अब वो केवल अप्रेजल और सैलरी से बढ़कर इट्स मोर ऑन द हैप्पीनेस ऑफ द एम्प्लॉय. बहुत सारे कंपनीज में वो हैप्पीनेस मैनेजर कहते हैं उनको, पीपल्स मैनेजर कहते हैं. सो These are the things which have evolved. आज का HR केवल HR नहीं है. आज का HR एक ऐसा पर्सन है, लाइक वो मॉम होती ना घर में, जो हर किसी की टेक केयर करते हैं. तो जब वो है, जब सब सही चल रहा है, nobody will understand कि मम्मी घर में है कि नहीं. जब मम्मी नहीं रहती तो पता चलता है कि यार बहुत सारी चीजें बिगड़ गई. Salt in a food. दिखाई नहीं देता लेकिन वैल्यू बहुत है. Yes. So HR is like that. What is best piece of advice you have heard? Or best pieces of advice you have heard till the date? So best piece of advice I have heard is be ready to take risk. Okay. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? Learning मिलेगी. Unsuccessful हो गए, next time दूसरी चीज़ try करोगे. Right. So this is something which I learned, and once I heard it, I make sure that I implement it. रिस्क लेना बहुत डिफिकल्ट होता है. बहुत सारे आपके दिमाग में कैलकुलेशंस चल रहे होते हैं, बट आपकी इंटेंशन मैटर करती है. इंटेंशन सही होनी चाहिए. आप जिस इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो, यदि आपकी इंटेंशन सही है, आपको आउटपुट सही मिलेगा. बेसिकली होता क्या ना, रिस्क लेने पे कई बार बोलते हैं
हाँ, तो रिस्क हम लोग ये या किसी भी चीज में रिस्क लेने चले जाते हैं, क्योंकि पटरी पे जाके रिस्क ले रहे हैं ट्रेन आने के टाइम पे, रील्स बना रहे कुछ या और। रील्स बना रहे, दैट इज नॉट द रियल रिस्क। Right. आपका एक्सपेक्टेशन Intention. क्या है, इंटेंशन क्या है? हम्म, मेरी इंटेंशन यदि ये है कि मुझे किसी स्पेसिफिक फील्ड में सक्सेसफुल होना है, ओके, इसके लिए मुझे ये कोर्स करना है, Right. और यदि मैं वो कोर्स करने के बाद भी मैं उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ, इट्स ओके, ठीक है, मैंने एटलीस्ट वो ट्राई किया, मेरी इंटेंशन सही थी। यदि मेरे को ऑफिस में कोई चीज कंप्लीट हो सकती है जल्दी स्मार्ट वर्क से, ओके, आई वांट टू ट्राई दैट, यू आर ट्राइंग इट, नहीं हुआ वो काम, ठीक है, मगर एटलीस्ट हम अपने मैनेजर को बता दे सकते हैं कि ओके मैंने ये ट्राई किया था, मेरी इंटेंशन ये थी, Right. इसका आउटपुट वैसा नहीं निकला जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, आई विल शेयर विद यू। सो समटाइम टेक रिस्क। राइट। मतलब एक कोट था, अभी आई कांट प्रेजेंट इट, जैसा सुना था वैसा, लेकिन उसका अर्थ ये था कि आपको उन चीजों का ज्यादा रिग्रेट होता है जो चीजें आप नहीं करते लॉन्ग टर्म में। मतलब आपके पास डिसीजन है कि ए और बी डिसीजन है, और मैंने अगर ए डिसीजन लिया तो मुझे पता है कि लॉस हो सकता है, लेकिन वो लॉस ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिग्रेट नहीं होगा वो डिसीजन का। यस, वो चीज बहुत होती है, कई बार हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, बट सिर्फ इस डर के कारण कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं इस अपॉर्चुनिटी को कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये रिस्क लेना सही होगा कि नहीं होगा, राइट। हम लोग अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं। तो वो यदि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी काम को करने का मौका मिल रहा है और आपके बेस्ट इंटेंशंस हैं, ओके, डू इट, ट्राई इट, trying is very important. yes, Yeah. Can you recommend some books? there are multiple good books available, One more but thing I will like to add here. मुझे लगता है कि जो एचआरस होते हैं ना, वो एक साइकोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं ओवर द टाइम, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी उनको समझ में आती जाती है। तो आप उसके रिलेटेड भी बुक्स बता सकते हो अगर आपके पास है कुछ। So बहुत सारी books हैं, and one thing which I learned during my tenure in HR, कि सबसे डिफिकल्ट टास्क जो होती है ना, वो अनलर्निंग होती है। आप लर्न कर सकते हो, बट अनलर्न करना कि ओके आज तक मैंने, जैसे एआई के आने पे लोगों को ये डर लग रहा है कि मेरी जॉब मार्केट का क्या होगा, यू हैव टू अनलर्न सर्टेन थिंग्स एंड लर्न न्यू थिंग्स, ओके, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सो देयर इज अ वेरी गुड बुक, थिंक अगेन, ओके, means I'm very bad in remembering the name of the authors, okay, so sorry for that, but Think Again is a book. There's another book, The Goal. Okay, The Goal. The Goal is more like a novel, but it's more about bottlenecks. क्योंकि हमारी लाइफ में हम लोग जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ bottleneck आ ही जाता है, या ये चीज के बिना आपका आगे नहीं बढ़ पाओगे। So it's a very good book, written in a novel form, but it's amazing book. Okay. And Good to Great is again one of the best book. And if somebody is willing to go in the HR field or TA field, there's a book named as Who. Okay. It's about interview methodology. Okay. It will be really helpful for people who are interested in going for a TA or HR field. Okay. Read about it. It has all the data, like interview process कैसा होना चाहिए, किस तरह से आप A+ प्लेयर्स को हायर कर सकते हो, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, बेसिकली आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत से कैंडिडेट्स को आपने इंटरव्यू किया होगा आज तक, लेकिन एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है एक कैंडिडेट में? एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि जब वो लोगों से बात करते हैं, दे आर रिस्पेक्टफुल, राइट, ओके, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन, दैट्स द बेस्ट क्वालिटी। आप एआई से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप किसी भी चीज से टेक्निकल आप कुछ भी कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन। Okay. Artificial intelligence is going to take its own course, but human intelligence is something which is unmatchable. One thing, if you can't respect someone, you are not a team player. So that is the one key skill, is respect others, and at the same time respect yourself too. कुछ लोग खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, so that's the important part. This was a great podcast. What will be your last message to our Podventure family? My last message is, when we talk about TA, HR or anything, okay, everything is about human, everything is about interacting with them. So खुद को रिसोर्स ना समझें,
खुद को डिप्रेस ना करें इन चीज़ों को लेकर कि यार ये कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया या फिर इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया. यू शुड नो योर सेल्फ वर्थ. यू शुड अंडरस्टैंड, एंड यदि आपका कुछ इंटरेस्ट है तो उस पर काम करो. दैट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग. लव वॉट यू डू, एंड दैट्स द की. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yeah.